Yes, very good evening to everyone. Freshers queries first. Freshers queries first. Freshers, rejoiners, queries first. Yes, Himali, बोलिए. Good evening, sir. Very good evening. Sir, I had a query. Actually, I had two queries which are related to each other. In the morning, when I checked, I was following Dr. Reddy's script from Tuesday. But in the morning, when I checked, that script was somehow not reflecting in the current setup, which is in the selling side. Because when I select live opportunity to sell, that script used to get filtered out. In selling in trending, which setup? First setup, ICRC, lower time frame, downtrend, or both. Then live opportunity selling. First, let us Yes, see. when I Dr. Reddy was there, yes. Then live opportunity selling. So Dr. Reddy is not there. yes, sir. So we can't sell. Okay, no, but my question is, sir, when do I? So, for example, when the market is open on Tuesday, do I freeze the scripts which I want to track for the entire week? For example, 5 scripts which I've selected, Dr. Reddy being one of them, and or alternately, do I need to go every day at the end of the day and check whether it's reflecting in the same setup, and then only I can take a position? If you initiated the trade already, Okay. then we need not. If you are yet to initiate Okay. the trade, then we Okay. need to. Okay. So every day I will go into that setup, filter out if same script is reflecting, and if I'm yet to initiate, then I have to track that. Okay, sir, got it. Yes. But sir, If you have in this initiated also, already, okay. looking at it on evening, and if you initiated on Tuesday, Hmm. but if it disappears on Wednesday, Thursday, or Friday, Hmm. then we need to discuss about that the trade which was appearing in selling, live opportunity selling, then retracement also at low time frame extended with resistance, and still after fulfilling all these conditions, I have initiated the sale, and now it is Hmm. not appearing in coming days, Yeah. maybe Wednesday, Right. Thursday, Friday. Then it is a matter of worry, and you have to inform me. But the script which you have not yet initiated the selling, then we have Hmm. to ignore this now, Dr. Reddy. We are supposed to trade only in Bata India and National Aluminium. Also, if you should go one step ahead, that these 8 scripts were appearing originally in selling, and now only 2 scripts are appearing in selling. What happened to other scripts? Why it is not appearing? Right. So immediate check is Dr. Reddy is now trading with support. Godrej is now trading with support. Havels is now trading with support. The green color है ना, the accordion. Adi. HCL Tech is Right. now trading with support. So 1, 2, 3, 4 scripts out of 8, 4 is removed like this itself. Then क्या available है now? Bata India and National Aluminium. Then Dr. Reddy is removed, Yes, sir. excluded now because it is trading with support.
Godrej Properties is excluded because it is trading with support. Havells is excluded because it is trading with support. HCL Tag is excluded because it is trading with, once it is traded with support. National Aluminium is still there. SRF, why it is excluded? Then we have to go and check in live opportunity selling. HCL Tech higher time frame has come into support. Okay, let us check higher time frame tone. HCL Tech higher time frame, it is not trading with support. Okay, then current time frame support. Yes, current time frame also has come once in support, no? So how many scripts are in support? So all that scripts, no, earlier we used to do it manually to find. Now it is whatever we used to do manually, checklist, all that is automatically excluded. 1, 2, 3. 1 Sir, Dr. but Reddy, Dr. 2 Reddy, Godrej, 4. Sir, Dr. Reddy, Yes. Sir, Dr. Reddy Hello? was not available in the morning itself. People are asking that we have sessions today. Let me update them. Sure. He's there now. Okay. I think same link, no? Everyone is available. Yes, okay. Himali? Sir, sir, so in the morning when I checked, Dr. Reddy was not available in the morning itself. Only SRF was available, whereas support was received during the day. Then let us check for some other reason. During morning it was there, right? No, morning it was not there. Morning only SRF was reflecting. No, one thing I will repeat again. Originally, these 8 scripts were there in selling, right? Right, sir. Now, point number 1. If you have initiated the selling position based on any of the 5 trading strategies, which is mentioned here in user manual, Right, sir. and then if the scripts are missing after selecting live opportunity selling in coming days, then we need to discuss about it. If we manage the selling trade initiate earlier, now it is not available, what to do? यो नहीं होगा. Secondly, if you are yet to initiate the trade, selling trade, then by default we have to go to live opportunity selling and initially adopt any one of this, particularly this first strategy that retraces and lower time frame trades with the resistance. For that, we'll have to go here, current time frame retracement. So it is only one. There are 5 ways. Actually, current time frame retraces and then current time frame trades with resistance or low time frame trades with resistance, which is known as FRAR, जो हम develop नहीं कर पाए. Ultimately, we want to fix our all the trades into this any one of these 4 situation. Current time frame यहाँ पे आ जाएगा बाद में selling and FRAR means current time frame trades with current time frame retraces and low time frame trades with resistance or current time frame itself trades with resistance means front runner after retracement. Second is current time frame is not retraced and trading with resistance. Without trading with resistance when it is without trading with retracement when it is trading with resistance,
allow low time frame also to trade with resistance, which is known as FR. Current time frame is yet to trade with resistance, like Bata India, ICRC. It is yet to trade with resistance, and low time frame trades with resistance, and we are initiating the selling. It is known as early selling. And alert selling is current time frame is trading with resistance, but low time frame is yet to trade with resistance. Then it is known as alert selling, which we'll avoid. We'll trade only these three. इसलिए मैंने पहला कहा है आपको, जो हम फर्स्ट कर रहे हैं, live opportunity selling, current time frame retracement, and then low time frame trades with resistance is nothing but FRAR. Okay. Front runner after retracement. Then after few days, we'll talk about this current time, which is included here. Current time frame is trading with resistance. Current time frame is trading with resistance, but then low time frame also trades with resistance is known as FR. That is also tradable. No need of retracement. Means current time frame trades with resistance and one follow up selling coming in low time frame sell. Third is early, जो हमने अभी बाटा के लिए बात की या रोज हम बात करते हैं, मैंने अभी अर्ली नहीं बोला, जैसे we are talking about ICRC open approaches lower band and low time frame trades with support. Before current time frame trades with support or before current time frame trades with resistance, and we are initiating the trade from low time frame, then it is known as early buying, early selling. That's all. मतलब तीनों में इन शॉर्ट लो टाइम फ्रेम तो बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है. Yes or no? Yes, sir. And all this is tradable. Okay, sir. So because in Dr. Reddy, I also looked into the filters along with Juhi, and then we also identified what would be the reason why it is not reflecting. But we couldn't find the reason, sir. Because it is trading with support. Okay. But sir, few more this is today. This we can find few more reasons also by going through all these things. या तो higher time frame में support मिला होगा, या current time frame is trading with support, और low time frame is not matching with theory. क्योंकि हमने current low time frame what we have selected downtrend, but low time frame if it comes uptrend, then it will not match, then it will be removed. Or current time frame approaches FC 261.8, then there is no point in selling, it will be removed automatically. Or higher time frame is trading with lower gap, so we trade only no gap, then it will be removed. Sometimes higher time frame will be RMSL lower, but never retrace, because RMSL lower, RMSL higher need to retrace, otherwise it is very risky, then automatically it will be removed. ओपनिंग पीरियड है, वी आर इनटू ओपनिंग पीरियड ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, तो शायद हो सकता है कि मंथली में कटिंग द फ्लाइंग काइट हो, देन आल्सो इट विल बी रिमूव्ड. Because few of the conditions we went through it together, and I saw lower time frame in downtrend, monthly is in ICRR. Shall we go through now all the situations? Yes, sir, if you could, sir. Higher time frame trading with support? No. Current time frame is trading with support. 8th October after 10:30 it is removed, because current time frame is trading with support. This is the only reason it is removed. लो टाइम फ्रेम थियरी मैचेस विद द फिल्टर, तो देखते हैं 8 अक्टूबर को डाउन ट्रेड है, हाँ है, सो फॉर दिस रीजन इट विल नॉट बी एक्सक्लूडेड.
drifting sell is 261.8. No. Is higher time frame ICRR lower gap? Let us see. क्या lower gap है? No. There is no lower gap. It is trading with no gap. So that is not the reason. Is higher time frame RMSL lower? No. It is ICRC. Is cutting the flying kite is there? No. Only reason is current time frame is trading with support. Yes, but so After that came 10:30, on this will not appear. Yeah, but this is not reflecting from morning itself. That's what my query is, sir. It will reflect only after 10:30, no? Because support, it is traded with support when. No, sir, in the morning when I took the stock of scripts into ICFC and live opportunity in selling, this was not included. Dr. Reddy had gone in the morning 7 o'clock itself. Only SRF was reflecting. That's why I was a bit Morning baffled 7 what o'clock, it was happened. not reflecting, you are saying. Yes, sir, morning 7 o'clock when I took the download, 7 a.m., it was not reflecting, sir. Because 8th October today, it is in downtrend only. All the conditions are Sir, satisfied. before You keep. market, sir. This is a very good exercise. Whenever all the 8 scripts are there, and out of 8, whichever scripts are removed, and remaining 6 scripts, why it is removed, you keep checking with live opportunity selling, and we'll continue this. This is a very good exercise. This is known as reason to buy, reason to sell. Okay, sir. Okay. Thanks. Freshers and rejoiners, please. Then we'll go to others. Chitranjan बोलिए. Good evening, sir. How are you? All well, बोलिए. सर ये आप पोस्ट ओपनिंग में जाएंगे आप आईसीआरसी नो गैप री एंट्री इनटू आरसी यहाँ पे इक्विटास है डाइवर्सिटी बाय सो मैंने ये ट्रेड सेटअप सर आई हैड bought this trade setup on Monday on Tuesday. So I just wanted to understand, sir, this what did I do wrong in this, and because what is all it? my other This is, see, last time भी इस तरह की कुछ query थी. These 18 scripts, no, which is re-entry into RC, or these 6 scripts for rebeginning to buy, or ये 9 scripts for rebeginning to buy. It doesn't mean that it is trading with re-entry into RC or rebeginning to buy. It filters much more in advance before re-entry into RC or rebeginning to buy occurs, and we have to initiate but the I trade. bought it. I was observing it, and I bought it at re-entry into RC. देखते हैं अगर re-entry into RC होता तो यहाँ पे green color आता. Let us check. ICRC opened 5th October 10:30. हाँ जी. It has come up to FC 23.6%. No. Right. It has only come up to below FC 14.6% case value. Now, re-entry into RC will occur when? So if there is support. ICRC opens and it is trading below FC 14.6% case value. RC 14.6 is resistance now. When re-entry into RC will occur? So if it trades with support. By trading which price?
सर ये RC 14.6 54.55। यस, वेरी गुड। तो क्या ये ट्रेड किया है? कब किया सर ट्रेड? 6th को किया था, 6th को। The condition is what I said, re-entry into RC. Condition 1, ICRC opens. And condition 2, it should approach below this 53.15 case value, which it is approached on 7th October. And then later, after this condition is satisfied, these two conditions, then only re-entry into RC will occur by trading 54.55. ओके सर, ये 6th को आप देखेंगे। ICRC opens and it is traded with active resistance. And 6th October, when it trades with 50 above 54.55, is nothing but minimum retracement. ये जो कंडीशन है ये आपने मिस की है, आई टेल यू। इसीलिए री एंट्री इनटू आरसी के बहुत सारे केस स्टडी हमने किए हैं, प्लीज करो अभी भी। This is represented by, this is re-entry into RC, Kolpal. ICRC opens, then 1437 के नीचे आया 5th October 11:30, राइट। then it goes above RC 14.6% TVHS on 6th October. यस, This is known as re-entry into RC. आपको ड्यूरिंग द सेशन जो नोट्स चाहिए वो भी देखना। मेरा इसमें आई थिंक गलती क्या हो गया सर, मैंने री एंट्री इनटू आरसी जो लोअर ट्राई में दिखा रहा था ना, so did I make a mistake considering that Voice as is a not support? इक्विटास में री एंट्री इनटू आरसी हुआ ही नहीं है, कल परसों हो सकता है, हुआ तो। नाउ फिर से कह रहा हूँ, आपकी नोट भी देखिए, मैंने बहुत सारे केस स्टडी भी दिए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने री एंट्री इनटू आरसी और री बिगिन टू बाय के केस स्टडी किए हैं, तो ये मिस्टेक नहीं होती। अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जो भी लॉस है ना, सिस्टम का लॉस है। आपकी गलती से लॉस जो पहले होता था, ये देखना हो बंद हो गया, वो देखना रह गया, दैट इज नॉट द केस नाउ। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्टर आपको देखना है, लाइव अपॉर्चुनिटी, सॉरी अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाय, फॉलो अप बाइंग, वो भी 2-3 महीने बाद नहीं देखना पड़ेगा। ये मिस्टेक अब होने के चांस नहीं है अगर आपने केस स्टडी किए हैं तो, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी दिए हैं री एंट्री इनटू आरसी के, और 1-1 घंटा ड्यूरिंग द क्लास सेशन हमने ब्रेक भी लिया है, फिर कर लेना, नो प्रॉब्लम। ICRC open, condition 1, ICRC opens, condition 2, it should come below kiss value, और लिखा है condition 3, it should stay above FC 23.6% TVHS 52.25, and then later follow up in order. Third thing is it re-entry into RC will occur when it goes above, trades above 54.55, और अगर ये री एंट्री इंटू आरसी है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो आया नहीं है। तो मैंने थोड़ी घाई कर ली है। लॉग लिखना सीखो, अगर सपोजिशन लॉग लिखना सीख जाओगे तो ये इसमें री एंट्री इंटू आरसी है ब्रिटानिया में, री बिगिन टू बाई हुआ है, अब आरसी 14.6 ट्रेड करेगा तो री एंट्री इंटू आरसी हो जाएगा। कोलपाल में री एंट्री इंटू आरसी है, यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे ग्रीन कलर है ना, रेड के बाद ग्रीन है, मतलब ये री एंट्री इनटू आरसी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आल्सो री बिगिन टू बाय होके री एंट्री इनटू आरसी हुआ है, मिस्टेक कुछ भी नहीं है। मेरी मिस्टेक, मैं ना वेबिनार में ये वर्ड सुनना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज से ये जब नया सॉफ्टवेयर नहीं था ना चित्रंजन, तो ये बहुत सुना मैंने, और मैंने भी गलतियां निकाली और अगले ने भी गलतियां की, और यही बात होती थी कि मैंने गलती हुई। अब मुझे है ना ये नहीं चाहिए कि भाई मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, ये
मिस्टेक वर्ड ही मत यूज करो, बस केस स्टडी करो, उसके बाद में मिस्टेक नहीं हो सकती है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I got it. क्योंकि आपको फिल्टर ही नहीं करना है यार। पहले फिल्टर करने में मिस्टेक होती थी, हायर टाइम फ्रेम टोन, ये इतना कुछ जो है, ये हायर टाइम फ्रेम ये देखना पड़ता था, वो अब नहीं देखना पड़ता है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग सीलिंग देखनी पड़ती थी, अब नहीं देखना पड़ रहा है। अब कुछ है ही नहीं, वन सेंटेंस फॉर्मूला हो गया, वन लाइनर। ये भी अगर मैं री एंट्री इनटू आरसी समझ लो कि करके दे देता हूँ ना, तो जब री एंट्री इनटू आरसी होगा ना चितरंजन, तब तक तो टारगेट ही आ जाता है इमीडिएटली। समझ रहे हो? वही होता। I know, I know. बना के दे, इस केस में री बिगिन टू बाय हो गया, तो जब तक आपको री बिगिन टू बाय हुआ पता चलेगा, तब तक तो टारगेट आ गया होगा। री एंट्री इनटू आरसी पता चलेगा, तब तक तो टारगेट आ गया होगा। और डेवलपर ने बोला ऐसा लिख के दो ताकि उनको पता चल जाए। मैं बोला लिख के क्या दे यार, वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। होने के बाद पता चलेगा, तब तक टारगेट ही आ गया होगा। देन व्हाट इज द यूज? ये प्रोबेबल कैंडिडेट है 18 केस, 18 के 18 में री एंट्री टू आरसी री बिगिन टू बाय होता है तो बाइंग करना है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग डाल दो, तो 40 स्किट्स है, ठीक है ना? Yes, sir. Got it. Got it. Thank you. अब आप लोग नहीं हो सकती है, सवाल ही नहीं है। ये इस जुनून से ही बनाया है न्यू वर्सन कि अब अगर कुछ भी लॉस है तो सिस्टम का लॉस है, आपकी गलती से लॉस नहीं हो सकता है, आपकी गलती से ट्रेड मिस नहीं हो सकता है। बस 1 मिनट 2 मिनट जितने भी केस स्टडी दिए हैं वो केस स्टडी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ अंश बोलो। यस सर। सर टाटा मोटर्स खोलोगे प्लीज वीकली? कौन सा ट्रेड करता? सर ये ट्रेड सेटअप यहाँ पे आ रहा है। ट्रेड सेटअप एग्जैक्टली आईसीआईसी खुला था, सो इट वुड बी इन द फर्स्ट ट्रेड सेटअप आईसीआईसी प्लस लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड। मुझे इसमें ट्रेड नहीं है बट एक क्वेरी है सर, और लाइव अपॉर्चुनिटी बैंक निकाल लोगे? हम्म हम्म कहाँ टाटा मोटर्स में? सर तो सेलिंग एंड ट्रेंडिंग में आ रहा होगा। आई वाज फॉलोइंग टाटा मोटर्स, खाली कि कैसे बिहेव कर रहा है वो देखने के लिए। मत जाओ ना सेलिंग एंड ट्रेंडिंग में, अभी मत जाओ। नहीं नहीं सर, एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग सेटअप राइट नाउ, बट एक सेटअप में था ये। कहाँ सेलिंग एंड ट्रेंडिंग में भी नहीं है, ये है यहाँ पर। हाँ सर इसमें खाली क्वेरी है था, जैसे मंडे को मैंने देखा था ना, एक बार प्लान खोलोगे प्लीज? सर मंडे को ये डायरेक्टर पैटर्न और रेंज दोनों डार्क रेड था, एंड समहाउ yesterday night it changed to green. सो वो सब मुझे समझा नहीं, मतलब वीकली में ऐसे ट्रेंड कुछ चेंज होता है ऐसे डायरेक्टर पैटर्न? बीडीपी 138 है, यस सर। तो नेक्स्ट लेवल उसका ट्रेड कर ले 140.55, ओके तो डायरेक्ट बटन ग्रीन हो जाएगा। और नेक्स्ट टू ओके। नेक्स्ट लेवल 4360 है, दो हाँ लेवल ट्रेड कर लिया, तो रेंज और डायरेक्ट बटन दोनों ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो दोनों लेवल ट्रेड हो गया, इसलिए इसीलिए उसको हम वैलिड बाय कहते हैं, व्हेन रेंज डायरेक्ट बटन बोथ इज ग्रीन। ओके ओके गॉट इट सर। सो मतलब वीकली में वैसे प्लान चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, ओके सर गॉट इट। डायरेक्ट बटन का कलर हो सकता है। ओके सो सर जब बीडीपी ट्रेड होगा तब डायरेक्टर पैटर्न का जो स्क्रिप्ट सेलिंग में है, हम्म इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट सैटरडे संडे जो स्क्रिप्ट सेलिंग में है, वो पूरा वीक हम सिर्फ सेलिंग ही करेंगे, और अगर वो बाइंग में है तो पूरी वीक हम बाइंग ही करेंगे। एक बार वो सैटरडे संडे जब हम प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में हम आएंगे, जो भी नहीं सीखा है, आप मंडे हम्म शाम को रखो,
शाम को जो स्क्रिप्ट सेलिंग के सेटअप में आ गई उसमें हम बाइंग नहीं करेंगे, जिसमें बाइंग आ गया उसमें सेलिंग नहीं करेंगे, भले डायरेक्ट का कलर चेंज हो। हाँ सर, मतलब यही, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि मंडे को डार्क रेड था दोनों एंड अचानक ग्रीन तो क्यों ऐसा हो नहीं गया? करना है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको टाटा मोटर में जाके इतना अच्छे से अभी तो 2 दिन से क्वेरी पूछ रहे हो और कितना बढ़िया कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट टाटा मोटर, बुल के घर में है कि बैर के घर में है, फॉलो वैलिड बाय होके फॉलो बैक जो चल रहा है कि वैलिड सेल होके फॉलो सेलिंग जो चल रहा है, इतना ही देखना है। अ, हाँ सर, ये मैं हमेशा देखता हूँ, बट लाइक यू हैड मेंशन्ड अभी 2 दिन पहले कि पहले वैलिड बाय तो मिनिमम है, वैलिड बाय, वैलिड सेल इफ यू वांट टू सेल। हम्म, सो मतलब बराबर। फर्स्ट आई के पहले अगर वैलिड सेल या वैलिड बाय है तो ही ये देखूं, अदरवाइज फॉलो बाइंग मतलब उसमें ट्रैक करना है यस, खाली, तो देन आई ओनली ट्रैक इट फॉर द होल वीक। बराबर है हंस, आप थोड़ा डिविएट हो रहे हो, बाइंग के सेटअप में है, क्योंकि ऑप्टेड सेटअप जो हमने 6-7 बोले हैं उसमें सीधा हम्म, बाइंग इन ट्रेंडिंग अभी नहीं जाना है। ओके सर। तो जो 6-7 सेटअप दिया हुआ है उसमें शुरू शुरू में एक 10-20 ट्रेड करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो और फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो सेल करो। फिर हम बाद में वो भी करेंगे कि बिना रिट्रेस अगर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया तो बाइंग करना है, बाइंग के सेटअप में है लेकिन हम्म, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ और सपोर्ट मिल गया तो वो भी हम बाइंग करेंगे। बाद में फॉलो अप सपोर्ट लो टाइम फ्रेम में अकर होता है तो ओके सर। फिर थर्ड हम और 10-20 ट्रेड कर लेंगे। पहला वाला जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ अभी उसको कहते हैं FRAR, फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। ओके, बाइंग के सिस्टम में है, रिट्रेस हुआ फिर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले या लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे विच इज नोन एज FRAR, फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। एफ ये आर ए हम आर, अभी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, फर्स्ट वन, ओके। द वेरी फर्स्ट वन हम सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। 10-20 ट्रेड बाइंग साइड सेलिंग साइड हो गया, बाद में हम सेकंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि बाइंग के सेटअप में है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं मिला बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट हैज अकर्ड, वो मुझे बाइंग करना है। तो कैसे करूं? करो, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो कर लो, बट इट विल नॉट बी नोन एज FRAR, इट विल बी नोन एज FR। मतलब बिना रिट्रेसमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, बट करंट टाइम फ्रेम एज वेल एज लो टाइम फ्रेम में दोनों में सपोर्ट से चल रहा हो तो। ओके, अंडरस्टूड सर। FR और अर्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं, FR मतलब लो टाइम फ्रेम में बाद में सपोर्ट मिला, करंट टाइम फ्रेम में पहले मिला। अर्ली मींस लो टाइम फ्रेम में पहले मिला, करंट टाइम फ्रेम में बाद में मिला, बस यही फर्क है FR और अर्ली में। बट फर्स्ट हाँ, जी बेस्ट इज FRAR। मेरी राइट। फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस मेंटल कॉम्पिटेंसी पूरी FRAR में यूज हो जाती हो तो मुझे बाकी 3 करना ही नहीं है। कभी कभार FRAR नहीं होगा और FR होगा तो FR कर लेंगे, कभी कभार ये दोनों ही नहीं होगा तो हमको अर्ली बाइंग मिलती है जो बाद में FRAR हो सकती है तो हम अर्ली कर लेंगे, और ये फोर्थ तो करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो ना? ओके, हाँ हाँ सर, समझ जाओ। एक्चुअली ये 4 सेंटेंस है बट ये बन नहीं रहा है 1 साल से, कंप्यूटराइज ही नहीं हो पा रहा है, बट है 4 ही सेंटेंस। बट उसको हम इस तरह से कर लिए। आई विल कम अगेन हियर, बाइंग इन ट्रेंडिंग, राइट, यस सर। काफी केस और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। नाउ आई एम सेइंग लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करो, व्हाट डज इट मीन? सर सो वेन एवर डेली टाइम फ्रेम में मुझे सपोर्ट मिलेगा तो आई शुड बाय। व्हाट इट इज मीन, व्हाट डज इट मीन? FRAR। एफ आर ए आर। अच्छा, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया हम्म, रिट्रेस होने के बाद तो भी FRAR। ओके सर, तो भी एफ आर ए आर।
हाँ, नाउ सेकंड रिट्रेस नहीं हुआ, मैं सिर्फ करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला वैसी 19 स्क्रिप्ट है और मुझे बाइंग करनी हो, हम्म तो आपको जब भी करंट टाइम, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट कितने बजे हुआ, कौन सी डेट में कितने टाइम में हुआ, उसके बाद में एक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाई करते हैं। तो इसी तरह से हम आगे जाके कुछ दिनों बाद देखेंगे कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, यस मिला, हम्म और लोअर टाइम फ्रेम में भी उसके बाद में सपोर्ट मिले बाद में फॉलो, तो हम उसको भी बाइंग करेंगे, दैट विल बी नोन एज एफआर। FR ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट कंप्यूटराइज कर ही लिया है, उल्टा वो जब कंप्यूटराइज हो जाएगा ना तो एफआर होने के बाद पता चलेगा, तो बाद में पता चलेगा तो रिएक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। पहले से हाँ मालूम राइट। हो कि भाई ये टाइम सपोर्ट मिलेगा और मुझे बाइंग करना है, तो आई विल बी रेडी टू रेस्पॉन्ड, उस समय रिएक्ट करना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे हो? हाँ सर। इस तरह से हम वन बाय करेंगे, फिर हम ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, फिर ये ग्रेटर देन बीटीपी डब्ल्यूडीपी, ये जो हम लाइव में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सीनियर्स को, तो समझ ही रहे हैं, बट रेडीमेड फिल्टर फर्स्ट टाइम समझा रहे हैं, तो उसको खाली सुनो समझो, करना नहीं है, उसका टेम्परामेंट बनाओ बस। जब एक बार हम ये चार तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, चार पांच सिनारियो जो आपको दिया हुआ है एज पर दिस, उसके बाद में हम रिवर्सल बाइसेल जो आपके लिए पेंडिंग रखा है, नहीं समझाया अभी, वो लेंगे, फिर RAR लेंगे, जिसको हम 5% प्लस ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग नहीं ठीक करना अभी, सुनो लेकिन ठीक है। टेम्परामेंट बनाओ, क्योंकि मैंने आपको अभी तक है ना ये कॉलम नहीं दिए, जब मैं कॉलम दूंगा उसके बाद उसको आप समझोगे तो कर पाओगे, और सीधा भी करना हो तो सीधा भी कर पाएंगे, बट समझ के करना चाहिए। दिस आई हैव नॉट शेयर्ड विथ यू येट। ओके सर। सर वन मोर क्वेरी। ये रिवर्सल बाय सेल, दिस इज नॉट गिवन येट, ठीक है ना? हाँ सर। सर और एक क्वेरी था। हम्म, सर पिडिलाइट इंडिया, बोलो कौन सा ट्रेड चलता हो? ICFC प्लस लो टाइम फ्रेम अपटेंड, हम्म, इसमें तो सर कटिंग खाली स्क्रीन, समझना था। कौन सी पीडी लाइट? पिडिलाइट सर, हाँ पिडिलाइट इंडिया। लाइव, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में ये स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है, 6 स्क्रिप्ट, तो क्या समझना है? सर इसमें ना एक बार प्लान खोलोगे प्लीज। ये सर हम्म, स्टार्टिंग ऑफ द वीक से ना आई एम ट्रैकिंग द स्क्रिप्ट, बट वो डायरेक्ट पैटर्न वाज चॉकलेटी, रेडिश था, मरूनिश था, एंड रेंज वाज ब्लैक। सो आई वाज ट्रैकिंग दिस एंड ऑल कंडीशंस वर फुलफिल्ड, बट फिर भी मैं ट्रेड नहीं लिया इसमें बिकॉज वैलिड बाय नहीं था सही। तो मैंने मतलब किस वैल्यू के बाद भी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट मिला था, बट आई लेफ्ट इट, इट वाज नॉट वैलिड बाय। अगेन फिर सेकंड टाइम 6:10 को जब 1:25 को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ ना, उसके बाद भी सपोर्ट मिला था, बट फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज इट वाज नॉट लाइट ग्रीन और मतलब वैलिड बाय नहीं था। सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो मतलब जब वैलिड बाय ना हो तो स्क्रिप्ट छोड़ ही देना चाहिए कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, तो वी शुड ट्राई और सैंपल ट्रेड करना चाहिए उसमें। वैलिड बाय विद फॉलो अप सपोर्ट होके चल रहा हो हम्म और ICFC में मिल रहा हो, या री एंट्री इनटू RC में काम हो रहा हो, री हम्म बिगिन टू बाय में हो रहा हो, तो ले लो। इट नीड नॉट बी, प्रीवियस पीरियड नीड नॉट बी, रेंज इन डायरेक्ट पैटर्न दोनों ग्रीन वैलिड बाय होना जरूरी नहीं। सब प्रीवियस पीरियड नहीं, करंट पीरियड इसे ये वीक का ही करंट वैलिड बाय पीरियड नहीं। वही पीरियड तो आया ना, हम आप खो गए यार, कितना बढ़िया करते करते खो गए। बैंक के सेटअप में स्क्रिप्ट है, यस सर। यहाँ पे हमने जाके देख लिया, रिकॉर्ड शीट समरी में वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग चल रहा है, चल रहा है हाँ। हो गया वो स्क्रिप्ट फिल्टर खत्म। नाउ हाँ। HDFC ओपन होना
सपोर्ट से चलना, फिर वो रिट्रेसमेंट में आता हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता हो तो ले लो। री एंट्री री बिगिन टू बाई है, रिट्रेस हो रहा है, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, ले लो। ओके सर, सो उसमें फिर करंट, मत करो। मैं सर करंट टाइम फ्रेम मेरा ऐसा, मतलब मेरा शायद वो मिस्टेक हो गया, मैंने करंट टाइम फ्रेम में आई वाज ऑलवेज लुकिंग कि वैलिड बाय होगा तो ही मैं। जो आप सोच रहे हो ना वो सोचना, अगर आईसीआरसी या आरएमएसएल हायर ओपन रहता ना तो सोचना था। इसलिए मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा है कि 1-1.5 महीना आईसीआरसी आरएमएसएल हायर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग फॉर आईसीआरसी एंड आरएमएसएल हायर तो ये हमको देखना पड़ेगा कि वैलिड बाय विथ फॉलो अप सपोर्ट भी है और करंट पीरियड जो है वो भी वैलिड बाय है। ओके, तो आईसीएफसी खुला है एंड इफ इट्स गोइंग विथ वैलिड बाय और फॉलो अप सपोर्ट था, तो करंट पीरियड अगर नहीं हुआ तो भी वी कैन कंसीडर इफ ऑल अदर Yes. कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। आईसीएफसी है तो भी कर सकते हैं, री एंट्री इनटू आरसी है तो भी कर सकते हैं, री बिगिन टू बाई है तो भी कर सकते हैं। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आके करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई कर लो। हाँ सर, वो मतलब इट वाज दैट्स व्हाट, मतलब मुझे वो हो रहा था कि ट्रेड आई वाज इनटू इट, मैंने देख चेक भी किया था। कोई बात नहीं, आप है ना वो चॉकलेट ब्लू ब्लैक के चक्कर में मत पड़ो, अभी बहुत टाइम है उसको, अगर करना है 6-8 महीने बाद देखेंगे, साल भर बाद देखेंगे। हाँ नहीं सर, सो दैट्स व्हाट, इसलिए मतलब मैं वो इंप्रेशन में था वैलिड बाय नहीं है तो फिर आई विल नॉट टेक द ट्रेड। थैंक यू सर, बट अभी क्लियर हो गया वो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके सर, डन। आईसीआरसी आरएफएल हायर भी नहीं कर सकते हो, आईसीएफसी में कर सकते हो। एक और हाँ है, सर। अगर करंट टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ ना, समझ लो आईसीएफसी जो हमको थोड़े दिन बाद लेना है, पहले मैं चाहता हूँ कि 10-20 ट्रेड आप एक्सपीरियंस कर लो, ट्रेड कर लो, उसके बाद में धीरे से स्लोली हम अडोप्ट करेंगे। जैसे ये बाइंग इन ट्रेंडिंग है, राइट, 49 स्क्रिप्ट्स। ओके, ओके, और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में भी है। फिर इमीडिएटली हम इसको करना है, एसीसी, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव डब्ल्यूडीपी। उसमें कंडीशन हम देख लेंगे, एक हाँ ही सर। लाइन। फिर ये भी हम करेंगे, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव, यहाँ पे भी हम ये स्टॉप एंड यूज टू अबोव डब्ल्यूडीपी। दिस आल्सो वी नीड नॉट सी, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि वैलिड बाई और फॉलो बाइंग होके चल रहा है। ये मैंने आपको करने के लिए कहा ही है, बाद में क्यों, अभी कर सकते हैं, अभी कर ही रहे हैं, बोला वही है। इस अकरेंस पीरियड वैलिड से वैलिड इनवैलिड बाय स्टॉप एंड यूज टू, इसलिए नाम है इसका। ये 3 स्क्रिप्ट है कि हमको ये इसमें प्रीवियस पीरियड कलर क्या था ये सब कुछ देखना ही नहीं है। एक बार वैलिड बाई विथ फॉलो बाइंग चल रहा था, बस इतना ही देखना है तीनों स्क्रिप्ट। और लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई हो और भी अबाउट डब्ल्यूडीपी तो लेना है। ये स्टॉप एंड यूज टू सेल मैंने सिलेक्ट किया, स्टॉप एंड यूज टू बाई करना है सर। वेर इज दैट, यहाँ पे इसमें कुछ है ही नहीं, तो चलो ये ले लेते हैं, ये सेलिंग कर लेते हैं। अगर ये अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड शुड समरी वैलिड सेल और फॉलो अप सेलिंग के साथ चल रहा हो, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड शुड समरी वैलिड सेल एंड फॉलो अप सेलिंग के साथ चल रही हो, कंडीशन 1। और यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है सर। बेच दो। एलआईसी हाउसिंग स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, बेच दो। रिलायंस स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी है, बेच दो। सर एक्चुअली मुझे सर यही कुछ बाद में लेंगे, कलर की जो बात कर रहे हो ना, ये सब कलर अभी अभी ग्रीन हुआ होगा तो भी हम बेच देंगे। ठीक है सर, मतलब इसमें आपने फादर ने कोर्स किया है और शायद आप है ना बहुत कुछ कोर्स करने के पहले से जानते हो, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हो और मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए बट आई एम अफ्रेड। मैं सिर्फ सिंपल सा कह रहा हूँ, सिंपल ट्रेड्स लो, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लो। ये आईसीएफसी लो टाइम फ्रेम अप ट्रेंड, ये जो फर्स्ट 7 स्क्रिप्ट्स है इसी को करो प्लीज। हाँ सर, मैं इसमें ही कर रहा हूँ। सपोर्ट मिला ले लो, और वो वैलिड बाइंग से चल रहा है विथ फॉलो बाइंग कर लो। ये आपकी आज जितनी भी क्वेरी है ना, सब चॉकलेट ब्लू ब्लैक रेड कुछ कुछ बोल रहे हो जो मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि क्यों ये सब आपके दिमाग में आ रहा है।
ठीक है ना, तो ये भी मत मुझसे मैंने, देखो, छोड़ दो, चलो छोड़ दो, लेट मैंने अस से, नॉट डिस्कस। समझ गए ना? हाँ सर समझ गया, ठीक है सर, क्लियर सर, दैट्स इट फ्रॉम स्लो माय एंड। जाओ, स्लो जाओ, बाद में बहुत भागेंगे। कल ही भावना ने समझाया है ना, बहुत अच्छा स्टडी दिया, बहुत अच्छे से समझाया है, वेरी गुड स्टोरी। जो शुरू शुरू में बहुत स्लो जाएगा ना, वो एकदम से है ना निखर के बाहर आएगा। जो बहुत शुरू शुरू में फास्ट जाना चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं लुढ़क जाता है। हाँ सर, ठीक है ना? ठीक है, बहुत यस सर। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स आते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं 2 मिनट मेरी स्टोरी कहना चाहूंगा। व्हेन आई वाज वेरी यंग, एंड ऑल ऑफ यू नो आई एम स्टिल यंग, राइट? व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, तब की बात है। इकोनॉमिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे इकोनॉमिस्ट ही बनना था। उस समय ऐसा सोच के रखा था कि इकोनॉमिस्ट बनना है अपने को। तो मैं सीए लेवल तक का इकोनॉमिक्स पढ़ लेता था, और इतना इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत डीप इन्वॉल्व रहता था कि 200 मार्क्स का पेपर जब फाइनल एग्जाम आया, तो मैं वो लिखते गया, और सीए लेवल का इकोनॉमिक्स जो है उसमें डाल दिया पूरा आंसर, एंड आई कुड अपियर ओनली फॉर 72 मार्क्स। अब 70 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, और मैंने अपियर ही किया सिर्फ 72 मार्क्स, बाकी सब पूरा क्वेश्चन पेपर जो मिस आउट ही हो गया। मुझे याद ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, तो 3 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है। और बहुत ज्यादा डीप उस लेवल में जाने से 72 मार्क्स, वो तो ठीक है कि भाई जो सर थे, क्या मालूम उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा मुझे, और पासिंग मार्क्स दे दिया 70 मार्क्स। नहीं तो फेल हो जाता, एक साल खराब हो जाता। जाना है आगे, धीरे धीरे जाना है, एकदम से जो लेवल में हम स्टडी कर रहे हो उसी लेवल में रहो। आई विल मेक यू क्रॉस ऑल द लेवल्स, तो स्लोली, बहुत अच्छे से मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, और कैसे लेके जाना स्टेप बाय स्टेप वो देख रहा हूँ मैं। पहले सिर्फ करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस, एंड देन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, और लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, वही बाई करो, विच इज नोन एज FRAR। फिर धीरे से हम दूसरे लेवल पे जाएंगे कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, बाइंग के सेटअप में है, बट करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, मुझे बाइंग करना है, तो ठीक है करेंगे ना। उसके बाद में लो टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिलेगा तो हम बाइंग कर लेंगे, विच इज नोन एज FR। थर्ड है बाइंग के जजमेंट में है, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला है, बट मुझे बाइंग करना है, तो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग कर लेंगे, विच इज नोन एज अर्ली बाइंग। बट ये FC की बात कर रहा हूँ। ICRC में रिट्रेस होकर ही करना पड़ेगा। ICRC और RMSL हायर का तो कंडीशन ही है, रिट्रेस हुआ तो ही बाइंग होगा। हाँ, बिना रिट्रेस किए अगर सपोर्ट मिल गया तो फिर बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पे बाइंग कर सकते हैं, विच इज नोन एज FR। और या तो फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई हो फॉलोइंग चैनल में ग्रेटर देन WTP, तो बाइंग करेंगे। बस इतना ही है, 4-5 सेंटेंस का शिक्षा कोर्स है, अब ज्यादा है ही नहीं, ओनली 5 सेंटेंस, 5 स्ट्रेटेजी 5 सेंटेंस, उसी तरह से 5 सेंटेंस में ही रखो इसको। क्वेश्चन सब बहुत ब्रिलियंट थे, बट वो सब ब्रिलियंट क्वेश्चन है ना, फिर वो बहुत ज्यादा डीप जाते हैं और खो जाते हैं। इसलिए आप कीप इट सिंपल। ट्रेडिंग शुड नॉट बी ए ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। एनीवन एल्स प्लीज? फिर भी आपके दिमाग में कुछ बात आती है तो प्लीज बता दिया करो। हाँ निश्चल बोलिए। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सिर्फ लाइव लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग है ना, उसमें क्या क्या कंडीशन हमको करना है? लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग एक सिलेक्ट करना है, उसमें करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट है, और लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट और करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट कौन सा लेना है सर? उसमें कोई भी बाइंग के सेटअप में अगर हम लोग ऑप्ट करते हैं तो ICFC 13 स्क्रिप्ट्स या हो गया फर्स्ट 1 क्लिक। राइट, हाँ देन आई एम गोइंग टू लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, तो 13 में से 6 ओके बचे।
राइट लॉजिक के साथ करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होता है, राइट फिर लो सपोर्ट मिलता है, उसको उसी को हम बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो तो आप ये सिलेक्ट करना है क्या लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट? आपका जो क्वेरी था ना, वो कैसा था मालूम है? मेथोडोलॉजिकल क्वेरी था, कैसे ऐसा करने का है, लेकिन वैसा नहीं। आप समझो कि भाई वो बाइंग किस स्क्रिप्ट में है, फिर हमने लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया, फिर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट किया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों तक वही स्क्रिप्ट बाइंग करनी है जो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो, राइट, बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले। ठीक है ना? राइट सर, राइट सर। तो ये लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट अपने को क्लिक करना है कि नहीं करना है सर? क्योंकि वो फिर ज्यादा फिल्टर हो जाता है, तो मैन्युअली चेक करना है या फिर यहाँ पे फिल्टर करना है उसको? नहीं करना है, नहीं करना है। और बात जो नहीं हमको करना। यहाँ पे राइट साइड में है ना, लो टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पे 5 अक्टूबर को रिट्रेस नहीं है बराबर, यहाँ पे 8 अक्टूबर 3:30 बजे रिट्रेस हुआ। राइट अब यहाँ पर 8 अक्टूबर के बाद 3:30 के बाद जब लो टाइम फ्रेम का टोन हमने ओपन ही रखा है, राइट तो यहाँ पे बाई कर लो 9 अक्टूबर में, कल आए बैंक राइट तो। राइट सर। बजाज ऑटो कब रिट्रेस हुआ? 8 अक्टूबर को 11:30 बजे। तो 8 अक्टूबर 11:30 के बाद जब भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले बाई कर लो। सर ने क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि पीडी लाइट फिर ज्यादा फिल्टर हो जाता है तो बहुत कम स्क्रिप्ट्स आते हैं, इसके लिए मेरे को वो क्वेरी था सर। क्या क्या? एडिशनल फिल्टर डालते हैं ना सर, तो स्क्रिप्ट्स और ज्यादा फिल्टर हो जाती है, बहुत लिमिटेड स्क्रिप्ट्स आती है सर, इसीलिए पूछना था और कुछ नहीं सर। अरे 150 में से 5 हो गई, अब इसकी और कितनी कम करोगे? सर वही बोल रहा हूँ सर, मैं और एक फिल्टर डालता हूँ ना तो और कम हो जाती है स्क्रिप्ट्स, इसके लिए मैं वो पूछ रहा था सर क्वेश्चन सर। आई गॉट इट सर। वो मैन्युअली अपने को देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला वो मैन्युअली देखना है सर, समझ गया। राइट, डन सर। वो भी फिल्टर करके देखूंगा, दैट इज नो, मैं फिर से आज कह रहा हूँ, चौथी बार कह रहा हूँ, वो भी फिल्टर होके आ जाएगा, विच विल बी नोन एज FRAR। राइट सर। बट ये फिल्टर होके आ गया ना, एक और स्टेप फिल्टर होकर आ गया ना निश्चल, हम्म, उस समय होगा तो मालूम है, आप इस फिल्टर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, और वो जब बरोबर है। होगा तब आप इनिशिएट करने की, तो उस समय आप सोचोगे, और जब तक वो माइंड सेट करोगे ना कि मुझे करना है, तब तक वो टारगेट आ गया होगा। ऐसा है FRAR। सर आपने बोला वो वेबिनार के स्टार्टिंग में ही बोला, वो समझ में आ गया सर। राइट, गॉट इट सर। अपने को पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि इस राइट भाव में बाइंग करनी है। अब लोड तो हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये राइट एक राइट लाइन ही है अभी, बाकी इसको भी मैं कंप्यूटराइज कर दूंगा तो सॉफ्टवेयर मस्त बन जाएगा, उसमें रिजल्ट भी आ जाएगा, धीरे धीरे ट्रेड स्टेटस भी आ जाएगा। लेकिन हम ट्रेड करने के लिए ही नहीं रहेंगे, ट्रेड वो टारगेट ही आ गया होगा तब तक। राइट। समझ? यस मैं सर। भी बहुत खुश हूँ कि हमारे का फिल्टर नहीं बन रहा है ना, वो अच्छी बात है। बनाना है वो भी एक अलग बात है। ठीक है। ओके सर। निश्चल भाई तुम्हारे खुश तो ये क्या थी, क्या सॉफ्टवेयर, क्या બધું પેલા મેન્યુઅલી करता था। सर्च बोलो। सहर्ष बोलो। यस सर। सर बस गुस्सा मत करिएगा। क्वेश्चन आपके आई लव यू। नहीं, क्वेश्चन क्योंकि आप जो कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे उसमें नहीं है, इसी के लिए। लेकिन मैं स्टडी करते रहता हूँ अच्छा सर, स्क्रिप्ट सेलिंग में है, आप एक बार बस HCL का HCL टेक का देखिएगा। वो बस क्वेश्चन ये कि आज तो वो पूरा ही पार कर लिया अपना चैनल, मतलब जितना भी अपन पढ़ते हैं 261 के भी ऊपर था, वैसा टाइप में। तब क्या करना चाहिए? ये था सेलिंग में था, आज कल के ICRC खुला था। कल का लाइव वेबिनार एक बार सुन लेना। HCL टेक 822 में बाइंग करने के लिए कहा है। 15 लेकिन मिनट का अपने जो लाइव वेबिनार होता है, वो इसी यहाँ के पे लिए मैंने देखा। ICRC में
हाँ, आईसीआरसी में ये है एचसीएल आपका सेलिंग में। ये देखिए हो सर, गया। एचसीएल टेक है। हाँ, रुको रुको, और ये यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में जाएंगे ना, तो आईसीआरसी खुल के कभी ये रेजिस्टेंस से चला ही नहीं, ना लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला। एचसीएल टेक सेलिंग के सेटअप में था, लेकिन आईसीआरसी खुल के एक बार भी रेजिस्टेंस से चला गया, एक्टिव रेजिस्टेंस दिया गया उसने। आज तो उसने अच्छा चलो, मतलब लो टाइम फ्रेम में एक बार भी 8 तारीख को सपोर्ट देने के पहले 5 6 7 3 दिन में एक बार भी सपोर्ट से चला क्या, नहीं सॉरी रेजिस्टेंस से चला क्या? नहीं लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देगा तो ही तो टूटेगा। नहीं, टूटने लो का बात टाइम ही नहीं फ्रेम कर में रहा। सपोर्ट। आज मैं बस इतना हाँ ही तो पूछ और रहा हूँ कोई कि सेटअप में बाइंग आई है, और कोई सेटअप में बाइंग आई है, और बाइंग चुके नहीं है हम। हम्म, क्या सर? कल क्या तो वेबिनार था ना, लाइव वेबिनार 15-20 मिनट का, वो सुन लेना। मैंने सुना HCL आपने टेक बोला, आपने बोला भी था कि ये बहुत अच्छा भाई है, बाई कर लो, मतलब पर हमने बाई नहीं किया क्योंकि आपने मना किया था। आपको नहीं बट करना है, क्योंकि सिर्फ सुनना है, टेम्परामेंट डेवलप करो, आगे जाके करेंगे। हाँ, लेकिन आज देखा अचानक से पूरा ही ऊपर चले गया, मतलब वो स्क्रीन को ही पार कर दिया, वो 261 को भी पार कर दिया 8 तारीख को। ठीक है ना, अभी इस सेटअप में नहीं है ना, रुक जाओ ना, करेंगे ना। मैं और सर आपको मंथली सिखा नहीं पाओगे अभी, पहले 25-50 ट्रेड कर लो यार, एक्टिव शिक्षा के, वहीं लेके जाना है मुझे, वहीं लेके वही कर जाना रहे है। हैं। मैं वेट कर रहा हूँ वहां पे कब लेने के लिए जाओ, मैं ये तो 3 कर महीना लिया हूँ। कोर्स और ले लिया था, ये समझ नहीं सकते हो? समझ सकता हूँ। 3 महीना कोर्स लेट किया है, तो मुझे ना अभी किसी सीनियर्स को बुलाना होगा और उनसे एडवाइस लेनी होगी, मैं जो सिखा रहा हूँ वो सही है कि आपके नहीं आप रिक्वेस्ट आ समझ जाऊं आ गया मैं? मेरे, आप जो आपका मोटिव जो है वो रेजिस्टेंस पकड़ के चलना और पहले सब कुछ समझना, वो एकदम समझा जा रहा है, पर और भी चीज ऑब्जर्व कर रहा मेरा हूँ सबसे मैं। बड़ा मोटिव क्या मालूम है? ये 3 महीना है ना, शिक्षा सिस्टम सीखने के लिए टाइम नहीं लगता, मैं ये बोल देता हूँ आपको। कोई एकदम नया हो ना इस बाजार में, जो 15-20 ट्रांजेक्शन करके आया है, 1 महीना नहीं लगता उसको, 1 महीना भी नहीं लगता है। जो इस बाजार में 5 साल 10 साल 20 साल से है ना, उनको ही 3 महीना लगता है। और मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे बोलने दो। 3 महीना शिक्षा सिस्टम सीखने के लिए नहीं लगता है। 3 महीना शिक्षा सिस्टम प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि हमारा खुद का एक पर्सनालिटी है, हमारा खुद का एक अप्रोच है, हमारा खुद का एक ट्रेडिंग स्टाइल है, हम खुद कुछ ऑलरेडी है, उसमें से बाहर निकल के इसको अडोप्ट करने में है ना 3 महीना लगता है। यस सर, समझ रहे हो? आज के यस लेवल सर, का जो शिक्षा सिस्टम है ना, उसको सीखने में 1 महीना भी नहीं चाहिए। कितना? 1 महीना भी नहीं एक चाहिए। मिनट। हाँ, लेकिन हम लोगों के पास कितना कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है ना अंदर, कितने तरह के हमारे अप्रोचेस है। यस अभी सर, तो 1 वीक भी नहीं हुआ और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले, तो उतना भी हम टिक नहीं पा रहे हैं ना। हमको तो बाकी सब कुछ, वो भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, वो भी टूट गया, वो भी टूट गया, सब कुछ चाहिए। वो भी इतना जल्दी चाहिए, कैसे होगा ना? उस अप्रोच में यस से सर। बाहर आना है सर। हम जो है ना, उसमें से हमको बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जितना ज्यादा केस स्टडी करोगे तो हम जो थे उससे कुछ और हो जाएंगे। यस सर। ये शिक्षा सिस्टम को भी, शिक्षा सिस्टम के सहारे, हिमांशु शाह के सहारे, और हिमांशु शाह को भी छोड़ के मार्केट के साथ एक होना है। देयर शुड बी वननेस बिटवीन यू एंड मार्केट। उस लेवल तक यस सर। हमको जाना है, और उस लेवल तक जाने के लिए पहले वो क्राउड साइकोलॉजी जो है हमारी, उसमें से बाहर निकलना है। कैसे समझाऊं? नहीं सर, ठीक है समझे ना? हुए हैं। धीरे हाँ धीरे ठीक करो है ना सर। यार। और इसीलिए एनरोल करने के लिए पहले है ना, मैं कहता ही हूँ 3 महीने लगेगा। रोज 3 आवर्स होमवर्क असाइनमेंट प्रैक्टिस करना, 3 मंथ्स मुझे दे दो। आज मुझे ये नहीं कहना था, लेकिन मैं कह रहा हूँ, शिक्षा सिस्टम सीखने के लिए, आज की शिक्षा सिस्टम सीखने के लिए 1 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए। यस सर। हमको खुद को बदलने के लिए है ना 3 महीना चाहिए, किसी को 6 महीना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतना जल्दी वो पुराने अप्रोच में से बाहर आएगा।
Yes, sir. Shall I go to someone else? Yes, sir. रिक्वेस्ट है सर, 3 महीना सिर्फ मैं बोलता हूँ उतनी ट्रेड लो, बाद में है ना जो आपको करना है कर लेना, जैसे करना है वैसे हाँ करना। ठीक है, 1 महीना करो, चलो 3 महीना नहीं, 1 महीना करो, आपके लिए 1 महीना बस। थैंक यू सर, 3 महीने ही करेंगे। यस, थैंक यू। आप थोड़ा समझो तो सही है, जो आदमी को सीखने में 20 साल 25 साल लगा हो, वो आपको 3 महीने में पूरा एज इट इज दे रहा है, तो देयर शुड बी, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। इस बाजार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने है ना हाउ मार्केट बिहेव से जानने के लिए 10 साल से कम दिया हो। 10 साल, 10 साल तो मिनिमम लगे हैं किसी को भी, इंडस्ट्री में चाहे कोई भी हो। सीए बनने में भी है ना 10 साल नहीं लगता है, ना डॉक्टर बनने में 10 साल लगता है, न कुछ और एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेने के लिए 10 साल लगते हैं। जिसको जितना भी आता है, जैसा भी आता है ना, उसने 10 साल दिए हैं। अब मुझे 3 महीने ही मांग रहा हूँ, मैं 3 महीने से ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी क्यों है ना, हड़बड़ी क्यों है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी मैं ये भी कह रहा हूँ कि बाकी जितने भी शिक्षा पार्टिसिपेंट्स हैं उनके प्रेजेंस में कह रहा हूँ, उनको जो समझने में 3 साल लग गया, किसी को 4 साल लग गया, किसी को 5 साल लग गया, उस बराबर मैं आपको 3-4 महीने में कर दूंगा, एग्जैक्टली इक्वल टू देम। ये 3 महीने जूनियर सीनियर की बात है, बाकी सब सीनियर ही है। एनी हो, होता है, होता है। Shall I go to seniors? कशिश बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कशिश। सर आप पिडिलाइट ओपन करेंगे रिकॉर्ड शीट समरी में वीकली, मुझे वैलिड बाय फॉलो अप बाइंग का आपको पूछना है। सर 22 अगस्त। एक सेकंड रुको। सर 22 अगस्त वाले प्लान में ओपन करेंगे एक बार। सर इसमें ना पीसीएस ना पीसीसी भी ट्रेड नहीं हुआ है, फिर भी इधर मास्टर सपोर्ट क्यों आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्लॉग में? मास्टर सपोर्ट हैज नथिंग टू डू विद पीसीसीपी। फ्रेश सपोर्ट इन नहीं आरसी नहीं, मिला। हाँ पर सर पीसीसी भी आप देखेंगे तो 1540 है ना सर। प्लीज प्लीज, एक तो पहली बात तो मास्टर सपोर्ट अपने को सीखना ही नहीं है। तुम वैलिड हाँ बाय सर, विद बट आप फॉलो बोलते हैं ना कि अगर वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग है तो आपका आंसर चेक करना हो तो मास्टर सपोर्ट लिखा है तो सही है। फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है। हाँ अलोन बीडीपी आल्सो ट्रेडेड। हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हुआ नहीं हुआ। तो फ्रेश सपोर्ट, तो मास्टर सपोर्ट। नहीं तो सर ये इधर पीसीसी भी, अपन तो हमेशा पीसीसी भी चेक करते हैं ना, वो लेवल डालते हैं ना प्लान में, एंड देन वी चेक वेदर दैट इज ट्रेडेड और नॉट। तो इसका पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 1540.60 है, वही प्लान में डाल के अपन चेक करेंगे ना सर। क्योंकि मुझे समझाने तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। वैलिड बाय विद फॉलो अप सपोर्ट, वैलिड बाय होके फॉलो अप बाइंग आना बराबर है। यस सर। इट इज नथिंग टू डू विद मास्टर सपोर्ट।
करेक्ट सर। वैलिड बाय होने के बाद में जो कंडीशन है वो क्या है? प्रेस सपोर्ट इन आरसी along with BDP and closes with PCS. ये जो लास्ट 3 सेंटेंस मैंने बोला दैट इज नोन एज मास्टर सपोर्ट। वो भी डेली में सही आ रहा है, वीकली में नहीं है। अब है ना, मास्टर सपोर्ट को छोड़ दो, मेरी गलती है मास्टर सपोर्ट बोलना। नहीं सर, मास्टर सपोर्ट को सर आपने क्या बोला कि अगर वैलिड बाय विद फॉलो अप सपोर्ट अगर हो रहा है, फॉलो अप बाइंग आ रही है, तो आपको खाली आपका मास्टर सर। सपोर्ट को छोड़ दो ना, सर मास्टर सपोर्ट को नहीं पकड़ा है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग का अगर आपको आंसर चेक करना है तो सर आपने क्या बोला कि अगर उधर प्लान में मास्टर सपोर्ट दिखता है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मास्टर सपोर्ट को नहीं पकड़ रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, मास्टर सपोर्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप रीज्वाइन किए इससे मैं कोशिश करता हूँ, वैलिड बाय अलोंग विद फॉलो अप बाइंग और वो मास्टर सपोर्ट वो आंसर रहता तो मैं आपको चेक करने को बोलता ही नहीं, यहाँ पे हाईलाइट करके दे देता कि इसमें फॉलो बाइंग हुआ है। सर मैं मेरा क्वेरी वापस आपको पूछता हूँ सर, मैं मेरा क्वेरी आपको वापस पूछता हूँ सर। मेरा क्वेरी मास्टर सपोर्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ सर, वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग अपन कैसे चेक करते हैं? पीसीसीबी हायर साइड ट्रेड किया होता है, पीसीसीबी को अपन प्लान में डाल के फिर वो हायर साइड ट्रेड किया होता है तब अपन देखते हैं, राइट? राइट। हाँ, अब वो 22 अगस्त का प्लान, 22 अगस्त का प्लान खोलेंगे, उसमें पीसीसीबी सर 1540 रुपए। हाँ, Give me 2 minutes, sir. Be with me. यस सर, यस सर। 17th March 2018 वैलिड बाय अकर हुआ जी। 9:30 to 25 is the PCCB। राइट। ये ट्रेड करेगा हायर साइड तो ही ये वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग कहलाएगा। करेक्ट सर। 24 मार्च को ट्रेड नहीं किया है, यस सर, नहीं किया है। 31 मार्च को भी नहीं किया होगा। हाँ सर, नहीं किया होगा। तो मेरा पीसीसीबी चेंज हो गया 93660 यस सर। और ये 7 अप्रैल को जाके मैं देखता हूँ कि 93660 का नेक्स्ट लेवल 61.8 है। वो अपन इग्नोर करेंगे, 955 कंसिडर करेंगे। हाँ हो गया। तो नाउ वैलिड यस बाय सर, हो विद गया। फॉलो बाइंग कर हुई। करेक्ट सर। ये एक चैप्टर क्लोज हुआ। नाउ बराबर है सर। नाउ इसके बाद में 3 कंडीशन देखनी है विच इज रिलेटेड टू मास्टर सपोर्ट। मास्टर सपोर्ट जब बना है तो ये 93660 से उसको कोई लेना देना नहीं है। इस वीक में ये फ्रेश सपोर्ट मिला, हाँ या ना? मिला सर। बीडीपी भी ट्रेड किया, हाँ या ना? यस सर, किया। और स्टॉप एंड टू सेल नहीं हुआ हो तो वैलिड बाय यस सर, सब कंडीशन फुलफिल करना है। तो कंडीशन फुलफिल किया। अब ये जो लास्ट 3 सेंटेंस है ना, दैट इज मास्टर सपोर्ट। करेक्ट सर। आप, मैं ये समझ गया सर। आप 22 अगस्त का प्लान खोलिए ना सर, उसमें पीसीसीबी क्या है, 1540 रुपए है सर, वो एक बार आप प्लान में डालिए। तो नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ। जब सर मास्टर सपोर्ट पीसीसीबी है ना सर, एक बात बोलूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सर पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय। कशिश मास्टर सपोर्ट वर्ड ही निकाल दे तो अपनी अपनी समझ में से। सर मैं मास्टर सपोर्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आप। हाँ अमन बोलिए। हेलो 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 हेलो
Can you hear me? Hello. हाँ सॉरी कशिश एक हेलो। कॉल था। हाँ हाँ मैं ऑडिबल? सर मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप 22 अगस्त का एक बार प्लान ओपन कीजिएगा ना प्लीज। मैं मास्टर सपोर्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ सर। 22 अगस्त में वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग चेक करने के लिए पीसीसीबी जो है वो चेक करना पड़ेगा ट्रेडेड ऑन हायर साइड है कि नहीं। ये पीसीसीबी यहाँ पे क्या है सर, 1540 है। ये सर हायर साइड कहाँ ट्रेड हुआ है? हाँ नहीं हुआ है तो आपने सर ये बोला था ना कि वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग आती है, और अगर आपको आपका आंसर चेक करना है कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, आप खाली वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्लान में जाइए, वहां पे अगर नीचे वो मास्टर सपोर्ट दिख रहा है आपको तो आपका आंसर करेक्ट है, मतलब वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग चल रही है। बट यहाँ पे सर वो पीसीसीबी ट्रेड ही नहीं किया है, फिर भी वहां पे मास्टर सपोर्ट दिखा रहा है, मतलब आंसर मेरा राइट है या वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। valid buy with follow up buying along with fresh support along with BDP closes with PCS। ये आंसर आपका सही है, ये चेक करने की कोशिश मत करो, छोड़ दो। वो मेरी गलती थी कि मैंने वो बोला। आई विड्रॉ माय वर्ड्स। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये वैलिड बाय, ये सर वैलिड बाय विद फॉलो अप हुआ है, मास्टर सपोर्ट वहां लिखा हुआ है, इसका मतलब वैलिड बाई है, फॉलो अप बाइंग भी आ गई, फ्रेश सपोर्ट भी मिल गया, क्लोजेस विद पीसीएस भी हो गया। वैसे आंसर हम टैली नहीं कर सकते हैं, आंसर अपने को टैली नहीं करना है, वैसे आंसर टैली नहीं होता तो है, गलत सिखाया बस। अब दूसरी तरीके से सीखे। बट हाँ यस सर प्लीज, यहाँ पे फिर ये वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग सर एक बार बताएं। पहली बात कि आंसर चेक मत करो जी। आप आपका आंसर आप चेक नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ पे फॉर्मुलेट नहीं हो जाए, आपको मेरे साथ ही चेक करना है, ठीक है? बाकी सबके आंसर तैयार है। एक लिस्ट में हमने ट्रेंड सीखा, थियरी सीखी, हाउ ओपन सीखा, हायर गैप, लोअर गैप, नो गैप सीखा, एटीआर सीखा, सपोर्ट रेशियो सीखा, रिट्रेसमेंट सीखा, एटीआर जर्नी सीखी। ये सब के आंसर हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यस सर, यस सर। विद फॉलो बाइंग अगर हुई कि नहीं हुई, ये आंसर हम चेक नहीं कर सकते हैं। अब से मैं भी मास्टर सपोर्ट नहीं बोलूंगा, पर हम उस तरह से आंसर टैली नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है सर। बट इसमें खाली आप मेरे को वैलिड बाय विद फॉलो अप बाइंग आप बता सकते हैं? है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ प्लीज। यहाँ पे पहले तो हमको वैलिड सेल ढूंढना पड़ेगा कि कब लास्ट वैलिड सेल हुआ था। जी सर। यहाँ पे टूटा हुआ नजर आ रहा है। हाँ सर, यस सर। मतलब ये पीसीडीएस 1244 ट्रेड किया था, लोअर साइड 1095 तक आया है, मतलब ये वैलिड सेल विद फॉलो अप सेलिंग है, राइट? यहाँ पे नहीं, ये नॉट दिस आल्सो, यहाँ पे वैलिड सेल हुआ। दिस लेवल 8775, लेट अस चेक इन दिस वीक। 118775 का नेक्स्ट लेवल 1171 है। दिस इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड along with WDP, along with PCR closed, no stop and buy। तो 11 मई के वीक में वैलिड सेल विद फॉलो अप सेल आ गया, राइट? करेक्ट सर। अब यहाँ पे 25 मई को वैलिड बाई है। यस सर। हेलो, आर यू देयर? हाँ यस सर, यस आई एम देयर। हेलो, आवाज आ रही है सर? यहाँ पे अपने पास भी नहीं है। हाँ नहीं है।
तो हमको 1325 नेक्स्ट वीक पकड़ना होगा। करेक्ट सर। जो ट्रेड नहीं किया नहीं किया सर। और फिर एक वैलिड बाय आया यहाँ पे 10 अगस्त को, यस सर। इसका 1374 पीसीसीबी है, 1374 यस विच सर। इज नॉट ट्रेडेड इन नेक्स्ट वीक। यस सर। उसके नेक्स्ट वीक भी आईसी जोन नहीं किया 1384 सर। पकड़ना होगा। दिस यस सर। 1384 इज आल्सो नॉट ट्रेडेड, पीसीआर से है बट सर बल। स्टॉप एंड रिवर्स हुआ। इसके लिए नहीं कंसीडर करेंगे, अब 1403 करेंगे, यस सर। which is not traded in 7 September 14 September week। यस सर नहीं किया ट्रेड। अब यहाँ पे 21 सितंबर को 1403 का नेक्स्ट लेवल 1411 है, ट्रेड कर लिया, यस सर। नहीं किया। 1411 नहीं किया सर, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया था, सेल हो गया। बराबर ना। यस सर। यस सर। Now 1425 to trade, this also is not traded on 28th September। यस सर। Valid by here, now one more valid by has come on 21st December। यस सर। This is 1409 1409 यस सर। traded in these 2 weeks, then 1412 has to trade, यस सर। which is not traded in 11th ये भी नहीं हुआ January। बिकॉज SNR2 सेल हो गया था सर। 1452 यस सर। not traded in next week। यस सर नॉट ट्रेडेड। 1472 यस सर। not traded। Now this first February को भी not traded क्योंकि SNR तो सेल हो गया। यस सर SNR2 सेल हो गया है। हाँ 1579 ये देखते हैं यहाँ पे ट्रेड हुआ था। 1579 का नेक्स्ट लेवल RC 38.2 ट्रेडेड। RC30 यस सर ट्रेडेड। यस सर। Fresh support, no stop and use to सर sell। सपोर्ट में जी। BDP also traded। Yes, sir. Close। यस सर तो यहाँ पे 15 Traded। फरवरी से बाई है with follow buying। ओके। Now we'll see a valid fill हुआ on 29th February यस सर। and this 1449 is traded on lower side। 14th वाले वीक में बट SNR2 सेल हो SNR2 बाय हो गया है। हो गया क्योंकि लोएस्ट 1449 which is traded on 28th March। 20th मार्च राइट। 1449 का नेक्स्ट लेवल 1372 ट्रेड हो गया। यस सर हो गया। Traded fresh resistance, no stop and use to buy, close it this year। यस सर। तो यहाँ पे valid sell with follow up selling है, तुमको एक और वापस valid buy with follow up buying यहाँ से ले 18th अप्रैल से यस सर। 1532.45 PCCB। यस सर। 1532.45 उसका नेक्स्ट लेवल इज 1567 1567 यस सर। ट्रेडेड। तो यहाँ Yes, पे sir, वैलिड traded। बाय विद फॉलो फ्रेश Buying सपोर्ट इन हो गई, आरसी yes, sir। अलोंग बीडीपी इज नो स्टॉप एंड यूज टू सेल। तो 25 Yes, sir। अप्रैल को वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग है। नाउ हियर वैलिड सेल इज अकर्ड बट पीसीएस 1305 ट्रेड नहीं किया है, सो देयर इज नो फॉलो अप सेलिंग। तो वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग ही चल रहा है। मैं जानबूझ के Okay, sir। लंबे केस स्टडी करा रहा हूँ ताकि सबके लिए प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे वैलिड सेल फिर यहाँ हुआ 18 जुलाई को। और वो SNR2 बाय हो गया वापस। नहीं जस्ट वैलिड सेल हुआ है अभी, तो फॉलो अप सेलिंग हाँ के लिए वैलिड सेल हुआ 1328 हाँ। ट्रेड करना होगा। राइट 1328 ट्रेड सर। नहीं किया आने हाँ नहीं हुआ नहीं ना किया। आने वाले दिनों में। इस क्या हुआ है इतनी देख लेते हैं। 1328 का नेक्स्ट लेवल 130680 है। 15 पैसे हाँ से नहीं नहीं हुआ वैलिड सेल, हाँ नहीं हुआ विद सर। फॉलो अप सेलिंग नहीं है, मतलब अभी भी वैलिड नहीं बाई है। है। कब से वैलिड बाई है? यस सर। इस वीक से 6 जून से। 22
राइट? 22 जैन से, हाँ जून से। हाँ तो बस, तो हमको अगस्त से क्यों देखना है? 6 जून से वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग चल रहा है। ठीक है सर, गॉट इट। समझ गए ना? हाँ ओके सर। अब 1 महीने बाद तुम वापस वेल वर्स हो जाओ थोड़ा बहुत, ये वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग की। तो आज जो हमारा डिस्कशन हुआ ना, दिस विल टेक अप वंस अगेन, जो मैं आज नहीं समझा था, बट लेंगे श्योर सर, जरूर 1 महीने बाद वापस। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू अभी सर। के लिए मास्टर्स वाली लेंगे। जी सर, शायद उस समय में आपको एक सेंटेंस में समझा दूंगा। वैलिड, अगर वो रेडी होता तो हम ये इतना प्रैक्टिस ही क्यों करते? इफ मास्टर सपोर्ट इटसेल्फ सेज कि वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग एंड ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये रेडी हो गया रहता। अब उन क्यों ये देखते ही सीधा लिखा हुआ आ जाता? कुछ यहाँ भी स्नैक्स एंड लेडर्स या टेक ऑफ लैंडिंग बना देते। ठीक है, नहीं होता है ना कहीं मैं भी शॉर्ट पढ़ता हूँ। एक्चुअली वो गलती है, मास्टर सपोर्ट लैंग्वेज बोला ना, वही गलत है मेरी, इज माई मिस्टेक। ऐसे नहीं समझाना चाहिए। ठीक है, एनीवन एल्स? मैं सीनियर्स के पास चला गया हूँ, बट नो प्रॉब्लम, जूनियर्स बैठे रहो, सुनो। अभी आपको इतनी डिसिप्लिन आ गई है कि ये समझना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुनना है। बोलो हिरन। गुड इवनिंग सर। सर वेरी कैश गुड। स्टॉक्स में एक क्वेरी था। न्यू वर्जन में कैश स्टॉक्स अभी आया नहीं है, इसलिए हम ओल्ड वर्जन में जा रहे हैं। सर स्टॉक इज एडवांस्ड एंजाइम्स। Which time frame? Daily. Actually sir query is that RAR is not updated, यानी वो किया है, उसने ट्रेड किया हुआ था बट वो अपडेट नहीं हो रहा है। आज ही मैंने 25-30 स्क्रिप्ट का कराया है। ये एक्चुअली जो निफ्टी 500 स्टॉक्स है और F&O स्टॉक्स है, उसी में RAR अपडेट किया है। ओके, उसमें RAR बराबर अपडेट हो रहा है। इसके अलावा बाकी सब स्टॉक्स में ऑन रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे अपडेशन नहीं हुआ, मुझे मैसेज कर दो, मैं कल ही करा देता हूँ। श्योर सर। एंड दूसरा सर, इसी का ईयरली टाइम फ्रेम एक बार ओपन करेंगे सर? ईयरली वगैरह सब नहीं जाना है यार, अच्छा ठीक है, कैश स्टॉक्स में। और आप ट्रैक कर रहा हूं आपके लिए जा सकते, बहुत मुश्किल है ईयरली सब बात करना। सर होल्डिंग है तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट बुकिंग। हाउ इट इज ओपन? सर ये खुला था आईसीआरसी। हाँ, आईसीआरसी में 3+1 का जेजीडी ट्रेड किया, तो बीडीपी का जर्नी आना चाहिए। 197 कब ट्रेड किया? नहीं किया। एंड 160.75 किस वैल्यू इज 159.60, किस वैल्यू तक नहीं आया? आईसीआरसी ओपन होके यस नाउ अब किस वैल्यू आ गया? फिर 145 एफसी 23.6 भी आ गया। 131 लोअर बैंड ट्रेड करना, वो भी ट्रेड कर लिया। एफसी 61.8 also traded on lower side। 100% तो बहुत मुश्किल है ट्रेड करना, खास करके आईसीआरसी को आता है तो यहाँ पे 98 रुपीज में एफसी 100% ट्रेड किया है क्या? नहीं किया सर। नहीं किया ना? हाँ, तो ये ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ से एफसी 61.8 से निकल के ये स्टॉक यूज टू बाय हुआ, स्टॉक यूज टू बाय हो आरसी 23.6, आरसी 38.2,
धीरे धीरे आया होगा। Basically, मेरा सर इनिशिएशन यहीं पे था, यानी स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय जो हुआ था वहां से ठीक इनिशिएशन है, था। इधर दिस ही इज अ ट्रेडर इन्वेस्टमेंट। होना हिरल, आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडर हो राइट सर। ना, स्टॉक्स के बारे में आपको मालूम ही रहता है कि भाई यू चूजन दिस स्टॉक, करेक्ट राइट? करेक्ट तो एफसी 100% के पास आता है ना, वही ले लो एफसी 100% का स्टॉप लॉस। राइट राइट और खास करके आईसीआरसी ओपन होके, आरएमएसएल हायर ओपन होके, राइजिंग चिल में ट्रैवल करके एफसी 100% के प्लान में, ईयरली प्लान में अगर एफसी 100% आता हो, वीकली मंथली का भी नहीं तोड़ता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ट्रू ईयरली का कहाँ से ट्रेड करेगा? समझ रहे हो? आई एम नॉट सेइंग Correct. ऑल द स्टॉक्स बाय विद एफसी, जहाँ आपका प्रीफर्ड स्टॉक्स है, आपको मालूम है कि बुलिश में इन्वेस्टमेंट करना है और राइजिंग चैनल से ट्रैवल होके एफसी 100% तक आ रहा है, तो एफसी 100% का टीवीएचएस 95 रुपीज है, 98 तक तो आया ही था, तो पॉवर यूज बाय का वेट करना, आगे से ऐसा कर सकते हो। राइट सर। और ठीक है, नहीं फिर ये 192 197 ट्रेड कर लिया, जेजीडी ट्रेड किया तो बीडीपी आना है 262 202 248 196 257, ओहो 100% भी ट्रेड कर लिया। सर 100% ट्रेड करने के पहले रिटर्न हुआ था। एक सेकंड मुझे समझने दो यार, ये आरसी 100% ट्रेड करने के पहले ये रिट्रेस हुआ और आरसी 61.8 का सपोर्ट लोअर से ट्रेड नहीं किया, राइट? वाओ, 1 रुपए से ट्रेड नहीं किया, नहीं 8 रुपए से ट्रेड नहीं किया, राइट। और वहां रिट्रेस होके जब 100% ट्रेड करता है तो सर वो आरसी 261.8 आ गया तो 161.8% 330 ट्रेड करके वो आरसी 261.8 आ गया, स्कोर ऑफ कर लो, यहाँ पे खत्म हो गई बात। हाँ, यानी मैं सर आरसी 261.8 तक आने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर एक बार अगर डेली में वो डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर दे और फ्रेश रेजिस्टेंस से क्लोजिंग हो, जो आज हुआ है। देखो डेली का स्नेक देखो, स्नेक का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। हाँ हाँ हाँ। और मैं तो कहता हूँ स्नेक का वेट क्यों करना है आपको, आरसी 261.8 ये लिखा आता है, तो वहां पे वहीं पे नहीं बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं सर, बट आरसी 261.8 ट्रेड भी कर लिया ना, तो वापस आएगा ना 382 में। करेक्ट सर, करेक्ट 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 करेक्ट। क्यों डेली प्लान में जाना, ये प्लान इतना बढ़िया ट्रेड करते करते डेली में क्यों जाना? वापस मिलेगा 270 के आसपास, करेक्ट यहाँ पे करेक्ट 2 में मिलेगा, फिर ले लेना, हाथ में से जाना नहीं चाहिए। राइट। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड बाई है। इसमें एक्चुअली इन्वेस्टर तो प्रॉफिट ही नहीं करना चाहिए, 384 से 281 आने दो, 100 रुपया, या तो फिर बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुक कर लो और फिर डेली का स्टॉप लॉस रख दो कि डेली का पीसीसीबी ट्रेड करेगा ना तो ले लूंगा, या तो फिर आरसी ये 281 आएगा 127.2% वहां लूंगा। करेक्ट 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 सर। आज वही एग्जिट किया है आज, बिकॉज वो क्या भाव में एग्जिट किया? हाई में? 360। अच्छा, तो 382 2 दिन बिक रहा था ना, रेस्पेक्ट दो ईयरली 261.8 को। सर वो चल ही रहा था दिमाग में, बट मैं बोला रुकता हूँ। इट वाज ट्रेडिंग वेरी वेल, वॉल्यूम्स भी अच्छे चल रहे थे, सो आई थॉट वो और थोड़ा 400 के नजदीक बेचूंगा। लालच था सर, व्हिच वाज रॉन्ग। जितना भी लालच रखना है ना, पूरा रखो लालच। 261.8 पे है ना, लालच मत रखो, बस इतना ही कहूंगा। करेक्ट करेक्ट सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। वो भी ईयरली प्लान का 261.8, वहां पे लालच नहीं करनी चाहिए। राइट 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 राइट। इन्वेस्टर लालच नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? उसको तो लालच करनी ही करनी, ठीक है? करेक्ट सर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हाथ में से जाना नहीं चाहिए माल, बेचा है नहीं तो नहीं डेली में लेडर आ जावे तो ले Yes, लेना, या 281 में ले लेना, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है? एंड दूसरा सर, विप्रो में एक क्वेरी था। ये मेरे में है ना, अभी ओल्ड वर्जन में कुछ नहीं है ना क्वेरी कैश स्टॉक्स में, नहीं 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 सर, ओल्ड नहीं। क्योंकि आप लोगों के लिए दोनों वर्जन ओपन होते हैं, ये एडमिन वर्जन है ना, दोनों ओपन नहीं होता एक साथ में। ओह क्या है वो, ठीक ही नहीं होगा।
जय बासुर। में कौन सा सेटअप? डेली में सर रिवर्सल बाय सर। संडे को अपना वेबिनार होगा शाम को 4 to 7। रिवर्सल बाइसेल को कंटिन्यू करेंगे हम। श्योर सर। BOR 1 रिवर्सल तो आता है सबको, बट BOR 1 2 सीखेंगे। करेक्ट सर। हाँ सर ये जो 1 अक्टूबर को स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रिवर्सल बाय हुआ, वो अभी तक वो लैंडिंग जोन दिखा रहा है। वेयर सर वहां पे फ्लाइट आना चाहिए था ना आज, बिकॉज वो फॉलोअप बाइंग आया हुआ है आज। नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो? रिवर्सल बाय जो हुआ है ये 1 अक्टूबर का जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल था, उसका रिवर्सल बाय हुआ 7 तारीख को कल। एंड 7 तारीख का जो PCCB था वो आज ट्रेड हुआ। तो यहाँ पे ये फ्लाइट सिंबल आना चाहिए था ना सर रनवे के जगह पे। ये रनवे का है, टेक ऑफ ही तो है। ओके तो वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का जो अकरेंस है वहां पे वो यहाँ पे टेक ऑफ आना चाहिए था। हाँ ये डेटा अपलोड हो रहे होंगे, लास्ट में अपलोड Okay. होता है, तो आप करेक्ट रुके नहीं। आपकी क्वेरी सही है। करेक्ट। दिस इज नॉट अकरिंग इन अनदर सम टाइम। तो मुझे कल वापस मैसेज करना कि विप्रो में टेक ऑफ का साइन यहाँ भी आना चाहिए, जो नहीं आया है। श्योर सर श्योर। सो एज अ इन्वेस्टर सर अगर मैं विप्रो में हूं तो मेरा एज ऑफ नाउ जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ये मैं वीकली में ही फॉलो करूंगा, बट अगर मैं डेली के हिसाब से चल रहा हूं तो 306 शुड बी माय स्टॉप लॉस राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वन स्नेक। ओके वन स्नेक दैट्स इट। एक बात मेरे साथ बोलोगे? श्योर सर। प्रोटेक्ट ऑल योर बाइंग पोजीशन प्रोटेक्ट ऑल योर बाइंग पोजीशंस with one snake. with one snake. Protect all of your selling positions Protect all of your selling positions with one snake. with one ladder आएगा ना सर? With one ladder. With one 10 ladder. बज गया ना? ठीक है? Right sir. With one Right. ladder. Sure sir. Yes, अजय बोलो। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर RBL डेली लेंगे? RBL डेली। हाँ सर। हाँ सर नीचे PCS PCR में सर एकदम नीचे लेटेस्ट में। हाँ सर थोड़ा ऊपर 28 तारीख के आसपास आएंगे सर, 28-27 में थोड़ा ऊपर 27 सितंबर। हाँ सर यहाँ पे ना 28 तारीख को PCCB 175.30 है जो उसने 1 तारीख को हायर से ट्रेड किया है, तो लैडर क्यों नहीं आया होगा सर यहाँ पे? 175.30 PCCB था। हाँ Then it becomes 176.35. हाँ This 176.35 1 अक्टूबर को 76.35 का नेक्स्ट लेवल है 178.35। ट्रेड किया है। फाइनेंशियल हायर खुद को हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद भी हुआ है। हाँ सही है, 1 अक्टूबर को लेडर आनी चाहिए। यहाँ पे लेडर बचानी चाहिए 28 सितंबर को। सर ये हो सकता है कि 261 आ गया हो तो शायद आपने उसको कंसिडर न किया हो। नहीं, ऐसा अभी सोच रहे हैं कि ऐसा करें, बट वो ऐसा अच्छा। नहीं करना है क्योंकि उसमें एक और ट्रेड है। 261.8 आके अगर लेवल बनती है ना, दैट इज वेरी गुड सेल आल्सो। हाँ उसको हम समझ गया बिल्कुल। सर एक और चीज पूछ लो अभी इससे रिलेटेड। अभी ये सर वैलिड बाय हुआ है 28 तारीख को। RBL बैंक
Level should appear. क्या हुआ कुछ है ना? बोलो कौन सी स्क्रिप्ट में जाऊं? हाँ सर, वही सेम आरवीएल में सर, उसी से रिलेटेड एक और चीज पूछना था। हाँ सर, अभी वो जो था ना सर, क्लाइंबिंग बाय, वो 28 तारीख का पीसीसीबी 175 थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर, जहाँ हमने बात किया किसके लैडर डेट आनी में चाहिए। जाऊं? हाँ बस ये रहा 28 तारीख को, ये वैलिड बाय हुआ सर, और इसको फॉलोअप बाइंग आ गई 1 तारीख को सर, पीसीएस से बंद भी हुआ ये, बराबर है। अब ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है सर 5 तारीख को, तो इसको डब्ल्यूडीपी पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सर? वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग है ना? हाँ हाँ है। सर, ये हाँ वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग कौन से भाव में आया? 261.8 में आया ना? राइट सर, राइट सर। और तो बाइंग अभी तो 1 इसको तारीख को हमने रिवर्स, की नहीं है। हाँ। और इसको रिवर्सल बाय सेल में भी हम ऐड कर रहे हैं वही, क्योंकि ये स्टॉप बाय सेल से आगे हम कहाँ गए? रिवर्सल बाय सेल में गए ना? हाँ दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ स्टॉप एंड बाय सेल। तो अभी राइट हम राइट लाइव मार्केट में वगैरह, तो अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो इट इज इन सेलिंग ओनली, राइट तो सर। हम बाय नहीं करेंगे। मैंने सर बाय नहीं किया हुआ है, बट मैं क्वेश्चन था ये एक्चुअली आरआर से देख रहा था, मैं आपको कहा नहीं मैंने, आरआर में ये सेलिंग में है, ठीक है, तो मैं ये हाँ सर। करेंगे इसको एक यहाँ से, एक पहले तो ये 169.60 इंटेक्ट हो, हाँ फिर यहाँ से जब एक लेडर आ जाए फिर से, हाँ हाँ या कम से कम अपर बैंड ट्रेड कर ले, फ्रेश सपोर्टिंग आरसी अलोंग विद बीडीपी ट्रेड कर ले, देन हम वी कैन बाय। सर, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है कि वो फिर बीडी पे आ जाता है, फिर वो अगर हम ऐसा करें ना तो डब्ल्यूडी पे लेना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। 5% थोड़ा लेट बाइंग होगा, ये बिकॉज हाँ ऑफ दिस 260 पॉइंट ओनली आई एम अफ्रेड, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, सही बात है, एकदम सही है। स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, इसका रूट ही स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का यही है। ये जो एडवांस राइट सर, वर्जन जो वही सेल कह रहा है, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन। बिल्कुल सही है, उसका रेजिस्टेंस हाँ जो 185 है वही की हाई भी है सर आरआर के हिसाब से। यस यस, बस यही आरआर सर में भी वही सेलिंग है ना? है, सेलिंग है सर, बिल्कुल परफेक्ट सेलिंग है। एक चीज और सर, एक रिक्वेस्ट था छोटा सा, ये जो अपना सर वेबिनार है ना, ये जब हमने ज्वाइन किया था ना सर, आपका एक सीनियर्स का ना एक वेडनेसडे दिन होता था खाली वेबिनार्स का, और बाकी फ्रेशर्स क्या का होता मंडे है? ट्यूसडे। जब हमने ज्वाइन किया था ना सर तो सीनियर्स का एक ही दिन होता था वेबिनार का, और फ्रेशर्स का 3 दिन होता था। अभी क्या हो रहा है सर, अभी दोनों मिक्सर है ना, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, और जो हम भी जो बैठे हैं यहाँ पे सुनने वाले, दोनों को जो प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या है, दोनों मिक्स हो गए हैं ना, तो हमको बहुत वेट करना पड़ता है एक क्वेरी के लिए। और साथ में क्या होता है, आप कुछ कुछ आपके वन लाइनर बहुत अच्छे से होते हैं, जिसका हम पूरा वेबिनार में सुनते हैं, खासकर कि एक लाइन जो आप बोल देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो, तो हम क्या करते हैं, फ्रेशर का भी मैं सुन लेता हूँ साथ में। तो अगर इसको हम अलग कर सके तो आपको भी थोड़ा आराम हो जाएगा, क्वेश्चंस वो भी ना सुने, क्योंकि वो भी नए नए है ना सर, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस बार मैंने, ये आपकी बात बराबर है, ऐसा कुछ सोचेंगे, बट इस बार जो फ्रेशर्स की क्वेरी है ना, हाँ और उस समय की जो फ्रेशर्स की क्वेरी थी ना, वो बहुत हाँ, फर्क है। एकदम सही बात है। मुझे ऐसा भी फीडबैक मिला है हाँ जो पुराने सीनियर पार्टिसिपेंट्स है, कि इस बार हाँ फ्रेशर्स की क्वेरी अटेंड करके हमारा पूरा हाँ, रिवाइज हुआ। एक्चुअली मैं वही कर रहा हूँ सर, एकदम सही बात है। लेकिन जो फ्रेशर्स कर रहे हैं ना सर, जो आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मास्टर सपोर्ट वगैरह जो मैं देख रहा था, जो चल रही थी बात, तो ये सर फ्रेशर नहीं ये है, वो होने वाला है। rejoiner है, हाँ हाँ वो रिजॉइनर है एक्चुअली। हाँ हाँ,
समझ रहे हो ना, इसमें जो सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, सारी जो क्वेरी पूछ रहे हैं ना, उसमें हाँ हाँ कुछ हाँ लोग रीजॉइनर्स भी है, तो मैं फ्रेशर्स और रीजॉइनर्स को पहले ले रहा हूँ। हाँ हाँ तो रीजॉइनर्स है, और मैं वो समझा नहीं पाया कि मास्टर सपोर्ट, फॉलो अप बाइंग विद मास्टर सपोर्ट इज द आंसर, इफ इट इज द आंसर, तो ट्रेंडिंग लिए हो गया ना, फॉर्मुलेटी हो गया। यस यस तो फिर मुझे आपको बोलने की जरूरत ही कहाँ है कि वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग का आंसर देखने इस की तरह से आता है, हाँ क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो, ढूंढो, तो सीधा बोल हाँ देता है, ये यही वैलिड बाय विद फॉलो बाइंग है जहाँ पे लेडर आई हुई है। हम्म That I could not. I wanted to explain him fresh support in RC along with BTP closest with TCS is master support. वो जो सेकंड राइट राइट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हाँ वो वैलिड बाई विद फॉलो बाइंग अगर मैच होता हो, हाँ तो सेकंड पार्ट ऑफ द कंडीशन देन इट इज मास्टर सपोर्ट। बट उन्होंने कैसे पकड़ लिया कि मास्टर सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, मतलब हम्म पूरा जो शुरू से वैलिड बाई विद फॉलो बाइंग along with BDP fresh support closing, actually मेरी फ्लो में निकल गया आपसे हाँ नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छा हैंडल किया सर, वो उसको आंसर देना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो वेबिनार में क्वेश्चन भी नहीं करता आगे। आपने उसको आंसर दिया, बहुत अच्छा किया, वो आंसर बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, आंसर में तो यही होता है ना, जहाँ हम नहीं समझा पाते हैं वहां पे सरेंडर हाँ हो जाओ, और क्या है, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, सही मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मैंने गलत समझा नहीं, दिया, इससे आपने ज्यादा कहा ना तो मैं क्या फिर कर समझाता हूँ, मैं नया फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, वो अच्छा किया आपने। नहीं तो पार्टिसिपेंट थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं फिर आगे के पूछने में समझ यहाँ पे। जाएगा, एक मेरी बात, ये बात समझ जाएगा जो नहीं समझा पाया। आप कैसे अभी एक सेंटेंस में समझ गए हाँ कि दैट पार्ट इज डिफरेंट, दिस पार्ट इज डिफरेंट। बिल्कुल सही है सर। अब फ्रेशर्स का और रीजूनियर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको हर क्वेश्चन है ना, हाँ हर बात का उनको है ना क्रॉस वेरीफाई आंसर चेक करना है, क्योंकि सिखाया है जैसे ट्रेंड चलो चेक कर लो, थियरी चलो चेक कर लो, ओपन चेक कर लो, गैप चेक कर लो, सब कुछ चेक करने के लिए पूरा सपोर्ट इश्यूज लॉ, उनकी जो पूरी समझ है, उनका आंसर हम्म उनके सामने पड़ा है। तो एक्चुअली एकदम सही है। फ्रेम हो जाते हैं, ये फ्रेम होने से ये जो सोचने की, समझने की जो एबिलिटी है ना, हाँ दैट इज बीइंग, ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, 2-3 महीने की बात है, फिर ये भी नहीं समझाना पड़ेगा। सर एक और चीज बोल दूं मैं छोटा, एक बोलो ना। अभी आप तो सर सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में थोड़ा बिजी है, जब आप फ्री हो जाए ना सर तो एक महीने में एक या दो कोई वेबिनार ऐसा जब आपको लगे, तो एक जो थॉट प्रोसेस आपने जो सिखाना बंद कर दिया ना सर, आपके पुराने वेबिनार है ना सब पुराने वर्जन वाले जितने हैं, बहुत अच्छा वो वेबिनार है सर आपके पुराने, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था डालने के लिए। तो अगर ऐसा कोई वेबिनार महीने में एक दो बार लगे, जिसको अडॉप्ट करना करे, जिसको सुनना है नहीं सुने, एटलीस्ट ये बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी समझने के लिए। जो आप थॉट प्रोसेस बता रहे हैं सर, एक साल के बाद समझ में आ रहा है कि थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। पहले समझ में ही नहीं आता था थॉट प्रोसेस क्यों बोलते हैं सर, कि ऐसा क्यों साइकोलॉजी का, लेकिन ये अब लगता है कि बहुत ही जरूरी है वो। इसका एक एक दो वेबिनार ऐसा होना चाहिए जब आपको लगे, महीने में मुझे एक भी हो एक जाए तो सवाल भी का बहुत हो जाएगा। जवाब दो ना, मुझे भी एक हाँ सवाल सर का जवाब, मैं हाँ सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को हाँ जवाब मिल जाए तो जब मिले तो फोन पे भी दे देना। हिमांशु हाँ शाह को समझने में 1 साल 2 साल क्यों लगता है, क्यों पहले दिन ही नहीं समझा पाता? एकदम सही है सर। एक दो साल भी मतलब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा सर, लेकिन हाँ ये कि समझ में आने लगेगा कि सर के पास क्या क्या चीजें हैं और हम कितना ले सकते हैं, हमारी हमारी लिमिट ही नहीं है लेने की इतनी। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी इतनी लिमिट नहीं है लेने की, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं सर। ऐसा कुछ लेकिन नहीं बहुत है। हाँ मैं एक बात कहूँ, बचपन में हमको कहा जाता था कि सिख चली जैसे विचार मत करो। हम्म आप बिलो 35 इसके लिए बोल रहा हूँ, हाँ हाँ सिख चली जैसे विचार मत करो, ऐसा हमको बचपन में कहा जाता था, और वो गलत है। हम हाँ हाँ ह्यूमन बीइंग शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अपन खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो लॉन्गर पीरियड में हम क्या कर सकते हैं ना, उसमें हमको, हमारे पास ना कोई विजन है, और हम उल्टा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं हम्म कहता हूँ शॉर्ट पीरियड में हम क्या कर सकते हैं ना, उसको बहुत कम सोचो। और आज से 2 साल हम्म बाद, 4 साल बाद, ये शिक्षा सिस्टम के नॉलेज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ ना, उसमें हम्म सेक्चुअली जैसे विचार करने चाहिए, सेक्चुअली हम्म बियॉन्ड अवर एबिलिटी इमेजिनेशन हमको सोचना हाँ चाहिए, और इमेजिनेशन हमको सोचना चाहिए। सेक्चुअली समझते हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल हाँ, बस सेक्चुअली जैसे विचार करने चाहिए जो बिलो 35 है। हाँ सही है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं हूं ना। चलो, मैं कुछ एक दो लोगों की हैंड रेस है, बट आई थिंक दे मैनेज।
we'll take up tomorrow. मुझे actually नींद आ रही है. Good night everybody. Thank you.